देखते हैं क्या न्यूमेरिकल हमारे पास में है। क्वेश्चन है अ 200 ओम रजिस्टर हैज़ अ 2 वाट पावर रेटिंग। मतलब कि एक 200 ओम का रजिस्टर है जिसकी पावर रेटिंग क्या है, 2 वाट है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो इन द रजिस्टर विदाउट एक्सीडिंग द पावर रेटिंग। वो मैक्सिमम करंट हमको निकालना है जो उस रजिस्टर से फ्लो हो सकता है विदाउट एक्सीडिंग द पावर रेटिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप गिवन डेटा नोट कर लीजिए, जो गिवन डेटा आपको मिला हुआ है क्वेश्चन से। तो गिवन डेटा में क्या क्या है बताइए। गिवन डेटा में हमारे पास में है रजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। एक रजिस्टर है, उसकी रजिस्टेंस की वैल्यू, तो मैं उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। कैपिटल आर इज इक्वल टू 200 ओम। और इसकी पावर रेटिंग भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 वाट दी हुई है। ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है इसमें, टू फाइंड करने क्या बोल रहा है, आई निकालने बोल रहा है। ठीक है। और ऐसा आई निकालने बोल रहा है जो कि पावर रेटिंग को एक्सीड ना करे। तो आपको फॉर्मूला क्या पता है पावर रेटिंग का, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डिवाइड बाई आर। और फिर आई इज इक्वल टू रूट ऑफ पी बाई आर। तो यहाँ सिंपली आप वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप पी की वैल्यू है 2 वाट, तो यहाँ मैं 2 वाट पुट करता हूँ, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू दैट इज़ 200 गिवन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/100 और पूरे का रूट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/√100, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है और 100 का रूट होता है 10। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1/10 एंड दैट इज़ 0.1 एम्पियर। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। जितनों को समझ आ गया वाई कमेंट कर दीजिए, सो दैट आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आप सभी का आंसर आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है इसी तरह का। अ 6.8 किलो ओम, नोट कर लीजिए आप लोग भी, अ 6.8 किलो ओम 0.25 वाट, 0.25 वाट। देखिए रजिस्टेंस दे दिया और पावर दे दिया, ये रेटिंग ऐसे लिखते हैं किसी भी रजिस्टर का। सो अ 6.8 किलो ओम 0.25 वाट रजिस्टर shows a potential difference of 40 volt, shows a potential difference of 40 volt of 40 volt. Again read the question. A 6.8 kilo ohm 0.25 watt resistor shows a potential difference of 40 volt. Is the resistor safe? Is the resistor safe? So what we have to find out? We have to find out this voltage which is given is correct or not. So for this, to check the voltage whether it is safe or not, what we are going to do, we are going to use the formula for resistance power rating, that is P is equal to V square by R, and this power formula is directly related to the applied voltage. So here let us find the value of voltage, that is V square by P by R. V square is equal to P by R. So V becomes root of P by R. So here just put the value of power which is given as 0.25 watt in the question divided by the resistance, that is 6.8 kilo ohm. Okay, so if you can use the calculator, that will be very good. Okay, so use this and find the value of voltage. Okay, so after solving this you will get
the voltage which is less than, you will get a voltage which is less than 40 volt, which is less than 40 volt. So if you have a calculator, then that will be very good and you can solve it. Okay, Aditi is getting 0.17 volt. Okay. Okay. So tell me the answer for this particular question. Aditi has given the answer as okay, 0.17 he is given. So try to figure out that. Okay, just one more time we will solve this question. So P is equal to also I square into R. Here what is given? The potential difference is given. So potential difference across the resistor is equal to I into R. So if you find I, then directly you can place here. So if you find I from here, what you will get? I is equal to I square equal to P by R. Okay, and here I have done some mistake. That is because I am getting the wrong answer. Whether you have noticed it or not, I don't know. Some mistake is there. Okay, so what will happen if you multiply this R to this P? What you will get? P into R equal to V square. So V equal to root of P into R. So root of P into R. So P is what? 0.25 into 6.8 kilo. 6.8 into 10 to the power 3. So now tell me the value of voltage, what you are getting. So you will get the voltage as 1.7 into 10 to the power 3 root. After solving this root, you will get the value of voltage. Okay, so tell me the value of voltage. It is coming root, let me, okay, I am taking 110 here and 10 square here. So what will be the answer? Here you will get, you multiply 1.7 with 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17 इंटू 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का क्या होता है? 10 होता है, तो 10 इंटू रूट 17 यहाँ पे आ जाएगा. तो इसकी जो वैल्यू है 10 रूट 17, ये क्या है बताइए? ये 40 से ज़्यादा है या 40 से कम है, ये आपको बताना है. तो रूट 17 का देखते हैं आपने कमेंट में क्या आंसर दिया हुआ है. Okay, what is the value for root 17? Okay, here some values I have received, 41.23, 41.23 volt. Okay, you are getting the same result. Very good. So what we are getting here? We are getting 41.23 volt. Okay, what we are getting? 41.23 volt. One more comment, 41.23. all of you are getting 41.23 volt. Very good. So this is the voltage we are receiving here. So the maximum safe voltage which can be applied to the resistor, ऐसा maximum voltage जो हम रजिस्टर पर अप्लाई करें तो रजिस्टर हमारा खराब ना हो, रजिस्टर हमारा बर्न ना हो, तो वो वोल्टेज क्या है आपका? 41.23 वोल्ट. ओके, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, दैट इज 40 वोल्ट. ओके, तो अगर हमारा वोल्टेज क्या है? 40 वोल्ट है, तो ये 40 वोल्ट क्या है? इस 41.23 वोल्ट से कम है. ये 40 वोल्ट 41.23 वोल्ट से क्या है? कम है. और 41.23 क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं. अब इस वोल्टेज से ज़्यादा अगर अप्लाई करेंगे 41.23 से, तो हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट होता है तो क्या रजिस्टर सेफ है? तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा? यस,
Yes, resistor is safe. Resistor is safe. Why? Why? Because the potential difference is 40 volt, which is less than safe operating voltage 41.23. Okay, so all of you understood the answer and the solution of this question. Please provide your comments so that I can verify it. Just type Y अगर आपसे बन जा रहा है तो, समझ आ गया तो वेरी गुड, सबका आंसर मुझे मिल गया. कुलदीप, देवेंद्र, ईश्वर, नारायण, उमेश, शगुफ्ता, योगेश, वेरी गुड, बहुत अच्छा. चलिए एक और प्रॉब्लम करना चाहेंगे हम लोग. वन मोर प्रॉब्लम. सो द क्वेश्चन गिवन हियर इज a 1.5 kilo ohm resistor, a 1.5 kilo ohm resistor has 1 watt power rating, has 1 watt power rating. Note down the question, all of you please note down the question. A 1.5 kilo ohm resistor has 1 watt power rating. What maximum voltage can be applied? What maximum voltage can be applied across the resistor without exceeding the power rating, without exceeding the power rating. So tell me the answer for this question. All of you please solve, because I have already given some demonstration earlier. So I expect that you can solve it and tell me the answer, what you are getting here. एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है हमको, R इज इक्वल टू 1.5 किलो ओम्स. ओके, एंड पावर रेटिंग क्या है, 1 वाट एस पावर रेटिंग. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रजिस्टर में जो वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है, वो मैक्सिमम वोल्टेज जो इस रजिस्टर में अप्लाई किया जा सकता है जिससे पावर रेटिंग एक्सीड ना हो, वो आपको कैलकुलेट करना है. तो आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, पावर रेटिंग का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. और यहाँ पे वोल्टेज से रिलेटेड पूछा गया है, तो पावर रेटिंग का वोल्टेज से रिलेटेड जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. सो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. चलिए देखते हैं आपके कोई कमेंट हो तो. ओके, मेनी कमेंट्स आर हियर. वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. शगुफ्ता, नारायण कौशिक, अदिति, मेनका, कुलदीप, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड. सो नाउ आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे सॉल्व करना होता है. तो आपको पता है पावर क्या है, v स्क्वायर बाई आर से दिया जाता है. अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, v स्क्वायर निकालना है. तो क्या हो जाएगा, p इंटू आर हो जाएगा, और v इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ऑफ p इंटू आर. सो नाउ आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ पावर एंड रजिस्टर. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर 1 watt इंटू 1.5 इंटू 10 to the power 3 and putting a root here. So what you will get, you will get 38.73 volt as your maximum applied voltage across the resistor without exceeding the power rating. अगर आपने
38.73 वोल्ट लगाया है किसी इस रजिस्टर पर जो क्वेश्चन में गिवन है, तब क्या होगा कि आपकी जो पावर रेटिंग है वो 1 वाट ही मिलेगी, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। तो अगर 38.73 से अगर आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तभी रजिस्टर की जो पावर रेटिंग है 1 वाट की उससे बढ़ जाएगी। सो आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सो अब एक नया टॉपिक लेते हैं। सो द न्यू टॉपिक इज नॉन लीनियर रजिस्टर्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स में जो मैंने पहला कुछ टॉपिक असेंबल किया था कि इतने सारे जो टॉपिक हैं वो मैं इसमें कराऊंगा, तो उसमें आपका लास्ट टॉपिक है ये नॉन लीनियर रजिस्टर। इसके बाद से हम डीसी सर्किट्स पढ़ेंगे कल से। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है नॉन लीनियर रजिस्टर्स। ओके, सो नोट डाउन नॉन लीनियर रजिस्टर्स। ओके, सो कैसे रजिस्टर्स को आप क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि रजिस्टर में जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखिए इस तरीके से हमने क्या बनाया था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की थी। ठीक है, तो उसमें कैसा आया था आपके पास, देखिए इस तरीके का आया था आपके पास, ये ऐसा क्या आया था, स्ट्रेट लाइन आया था। अगर ये क्या है आपका वोल्टेज है, सॉरी वाई एक्सिस में मैं अगर क्या लूँ, वोल्टेज को ले लूँ और करंट को कहाँ ले लूँ, एक्स एक्सिस में, तो ये आपका जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये क्या बताएगा, क्या बताएगा आपको, कर्व बताएगा जो वोल्टेज और करंट के बीच बन रहा है। किसके लिए, एक पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ये लीनियर है तब क्या है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है कि अगर आप वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं, अगर वोल्टेज को आप डबल कर रहे हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वोल्टेज को आप हाफ कर रहे हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब लीनियर होता है तो एक साथ इसमें चेंजेस होते हैं, सेम टाइप के चेंजेस होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। लेकिन जब ये नॉन लीनियर रजिस्टर होता है तब वोल्टेज कुछ और होगा, करंट कुछ और होगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉन लीनियर रजिस्टर क्या होता है। तो इसका एक डेफिनेशन है छोटा सा, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अ डिवाइस और सर्किट एलिमेंट, अ डिवाइस और सर्किट एलिमेंट, देखिए सर्किट एलिमेंट में क्या क्या आ जाएंगे, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होती हैं वो सर्किट एलिमेंट में आ जाएगा। अ डिवाइस और सर्किट एलिमेंट हुज वी आई कैरेक्टरिस्टिक, हुज वी आई मतलब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स voltage and current characteristics is not a straight line, is not a straight line, is said to exhibit non-linear resistance, okay, so this is the definition for non-linear resistor। ऐसे डिवाइस या ऐसे सर्किट एलिमेंट जिनकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होती, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है कि वो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस एग्जिबिट करते हैं, या उनमें क्या होता है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड थर्मिस्टर, ठीक है, क्या है, थर्मिस्टर। और क्या होता है, वैरिस्टर होता है, वैरिस्टर्स। डायोड के बारे में सुना होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, डायोड होते हैं, वो भी इसमें काम आते हैं।
या आपने ट्यूबलाइट देखा होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट लैम्प। तो उनके जो फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स ऑफ, सॉरी इनकैंडिसेंट नहीं, वो आपके फ्लोरोसेंट होते हैं ट्यूबलाइट। इनकैंडिसेंट मतलब वो जो बल्ब आती थी पहले, पीला लाइट जिसका जलता है येलो कलर का, वो है आपका। तो फिलामेंट उसके अंदर वायर होती थी, जिसको देख करके आप बताते थे कि वो फ्यूज़ हो गया कि नहीं हुआ है। तो वो वायर ही क्या है, आपका फिलामेंट है। सो फिलामेंट ऑफ इनकैंडिसेंट लैम्प। सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर अभी तक का, यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ आ गया तो एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए, वाई कमेंट करिए। सो आई थिंक सम क्वेश्चन विल बी देयर। सर हिंदी में भी, ओके ठीक है कुलदीप, हिंदी में भी बात करेंगे। तो सबको नॉन लीनियर समझ आ गया कैसा होता है? थैंक यू। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, वेरी गुड। सो अच्छा, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड मैंने लिया है ये ज़्यादा बेटर है या इसके पहले जो वाइट बैकग्राउंड में पढ़ा रहा था वो ज़्यादा बेटर है? एक बार कमेंट करके बताइए, ब्लैक बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है या वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है? ओके नारायण, वाइट, ब्लैक, ब्लैक। ओके, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में देख लेता हूँ। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमने नॉन लीनियर रजिस्टर देखा है, जैसे कि थर्मिस्टर की बात हुई थी। तो थर्मिस्टर के ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि वो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन लीनियर रजिस्टर्स की, ठीक है, ये देखेंगे। किसी को स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा है क्या? किसको? खिलेश, आप पिन कर लीजिए। चलिए मैं दोबारा पिन कर देता हूँ। अब चेक करो, अब आ रहा है स्क्रीन? अब चेक कर लो, चेक करके बताओ स्क्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा। खिलेश ध्रुव, खिलेश ध्रुव, बाकी लोग को स्क्रीन आ रहा है? ठीक है खिलेश, अभी कंटिन्यू करो, आप सुनते रहो। मैं आप पूरे पीडीएफ नोट भी दूंगा और अभी जो क्लास चल रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप क्लास को अटेंड करते रहो। और अच्छा आ रहा है अब, ठीक है, ओके, आ जाएगा। नेट की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, वीडियो भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो अब हम देखने वाले हैं थर्मिस्टर के बारे में, और ये क्या है, एक नॉन लीनियर रजिस्टर है। इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लेना, थर्मिस्टर, ये करेक्ट लिखना आप हमेशा। तो थर्मिस्टर जो होता है हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, हीट सेंसिटिव डिवाइस। इसका मतलब क्या है, हीट सेंसिटिव डिवाइस का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर में चेंज आता है या टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस होता है थर्मिस्टर का, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। मतलब थोड़े से टेम्परेचर चेंज की वजह से अगर स्मॉल चेंज भी होता है टेम्परेचर में, तो आपका जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी अ लार्ज change in the resistance of thermistor. Okay, so because of that it is called as heat sensitive device, and इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो एप्लीकेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो चीज़ है कि ये बना किससे होता है, थर्मिस्टर किस टाइप के मटेरियल से बना होता है। तो जो थर्मिस्टर हमारा होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। So thermistors are made of semiconductor material.
ओके, आप लोग जैसा चाहें वैसा यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मैं आपको बस एक आइडिया देने के लिए यहाँ रख रहा हूँ। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है, बहुत लिटिल उसमें चेंज आ रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस ना बहुत फास्ट चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है। सो अ थर्मिस्टर हैज़ सम प्रॉपर्टीज़, जैसे कि 3 प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़, इसको आप नोट कर लीजिए, डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये छोटा सा पार्ट है, लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इससे 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं 100 में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए थर्मिस्टर चेंजेस वेरी रैपिडली विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था। सो आप लोग भी नोट कर लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर changes very rapidly with change in temperature. Okay, now the second property is the temperature coefficient of a thermistor is very high. The temperature coefficient, the temperature जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, the temperature coefficient of thermistor इज़ वेरी हाई। इसका मतलब क्या है, अगर अल्फ़ा जो है टेम्परेचर कॉफिशिएंट है किसका, थर्मिस्टर का, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही हाई है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका जो टेम्परेचर है उसमें अगर स्मॉल चेंज होता है, कोई भी स्मॉल चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस में होती है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पे उतना इंक्रीज जितना वैल्यू है। तो इसीलिए जब आपका टेम्परेचर 1 डिग्री ही बढ़ता है तो भी बहुत ज़्यादा चेंज रेजिस्टेंस में मिलता है, क्योंकि ये जो है रिलेटेड होते हैं। जैसे आपको RT बताऊँ तो RT होता है आपका R0 1 प्लस अल्फ़ा 0 इंटू टी। इसका मतलब ये है कि RT मतलब किसी एक बढ़े हुए टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होती है R0 प्लस R0 इंटू अल्फ़ा 0 इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 0 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्फ़ा 0 थर्मिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वाला जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये पुराना रेजिस्टेंस, तो टोटल करने से ये जो RT होता है बहुत ही लार्ज आता है, बहुत ही बड़ा आता है, और टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल होता है। उसकी वजह से देखो बहुत कम चेंजेस है टेम्परेचर में, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस का जो चेंज है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, हीट सेंसिटिव डिवाइस, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो कैन बी पॉजिटिव समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, एंड निगेटिव, और निगेटिव भी होता है, बोथ। तो थर्मिस्टर ऐसे टाइप का रजिस्टर है जिसमें उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव दोनों होता है। सो आई होप कि आप इसका नोट कर लिए होंगे तीनों प्रॉपर्टीज़ को। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये एक हीट सेंसिटिव डिवाइस है, किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी है द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस वेरी रैपिडली
विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में होने वाले चेंज की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत क्विकली, बहुत ही रैपिडली चेंज होता है, फास्ट चेंज होता है। और जो इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, दैट इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर इज़ वेरी हाई। इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। एंड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस थर्मिस्टर कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ, कि थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब हम क्या जानते हैं कि किसी भी अगर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है। तो अगर किसी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो, बढ़ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो, घट जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है थर्मिस्टर का, ये कभी कभी पॉजिटिव होता है और कभी निगेटिव होता है। तो ये दोनों तरह के टेम्परेचर कॉफिशिएंट को एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पे ये जितने भी कंसेप्ट थे, प्रॉपर्टीज़ थी थर्मिस्टर की, इनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको बेटर प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जिसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की वेरिएशन को मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा कि कितना लार्ज इसमें वेरिएशन होता है, वो हम यहाँ पे समझ पाएंगे। ये मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक है, और ये है हमारा टेम्परेचर की लाइन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ रेजिस्टेंस, ये क्या देगा मेरा? ये वाला एक्सेस रेजिस्टेंस को बताएगा ऐसे, और इधर क्या बताएगा? टेम्परेचर। ये किस में होता है? डिग्री सेल्सियस में। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ -50। ये क्या हो रहा है मेरा? -50। ये वाला पॉइंट -50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा? -50 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट एक और मैं लाइन लेता हूँ, चलो यहाँ पे ये ऐसा ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0। और एक और लाइन ले लेते हैं, ये बता रहा है मेरा 50 को, और एक और लाइन लेते हैं, ये बताएगा 100 को, और ये बताएगा 150 को, इस तरीके से। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं टेम्परेचर की, हमने ये प्लॉट की है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये पॉइंट क्या है? 150 डिग्री सेल्सियस है। तो ये टेम्परेचर की लाइन हमने बना ली। अब हम बना लेते हैं किसकी लाइन? हम बना लेते हैं रेजिस्टेंस की लाइन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में आप देख पाएंगे कि इसको मैं क्या मानता हूँ? 10 मानता हूँ। ये वाली लाइन क्या है मेरी? 10 के लिए है, और इसके बाद 100 मान लेता हूँ, यहाँ कहीं पे होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंज होती है। ये 100 है, और फिर ये है क्या? 1000। यहाँ पे मैं 1000 मान लेता हूँ, और इसके बाद 4000 यहाँ पे ले लेते हैं, और सबसे टॉप में लेते हैं 10,000, ठीक है। इसको सबको हम जॉइंट कर देते हैं, ओके। सो ये मतलब आपको समझने के लिए कि वैल्यूज़ क्या क्या हैं। चलिए अब वैल्यूज़ लिख देते हैं। ये 10 ओम है, फिर 100, आफ्टर दैट 1000, देन यहाँ पे कहीं पे आएगा 4000, और यहाँ ले लेते हैं 10,000। तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हमने क्या ले ली? वाई एक्सिस में 10 से लेकर के 10,000 तक ले ली, और टेम्परेचर में कहाँ तक ले ली? -50 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक ले ली। अब इसमें जो थर्मिस्टर का ग्राफ बनता है, इसमें जो प्लॉटिंग होती है थर्मिस्टर की, टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ फॉर थर्मिस्टर, सो
टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ होता है जो थर्मिस्टर का, उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो मैं अभी बनाऊंगा। वाइट कलर से मैं इसको बनाता हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ना यहाँ कहीं तक आता है, ये 3 ओम तक आएगा, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे 4000 से, ठीक है। सो ये मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। ये ऐसा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। एक बार और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जब राइट साइड आप आ रहे हैं, इस तरफ जब आप आ रहे हैं राइट साइड में, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। उस मटेरियल के, थर्मिस्टर के टेम्परेचर को हम -50 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं। तो उसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है पहले क्या था, -50 डिग्री सेल्सियस पे 4000 ओम था। तो 4000 ओम से वो कहाँ आ गया, 3 ओम पर आ गया। तो मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि थर्मिस्टर में क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस होने के कारण जो उसके रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है वो बहुत ही रैपिड होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपने क्या किया है, इसको चेंज किया है, किसको, -50 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को, जिसकी वजह से थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट चेंजेस वेरी रैपिडली फ्रॉम 4000 ओम टू 3 ओम। तो ये इस तरीके का इसका थर्मिस्टर का ग्राफ होता है, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें। जस्ट लेट मी स्विच ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ओके, सो आई स्विच्ड ऑफ इट, थैंक यू। सो अगर यहाँ तक जो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप वाई कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन के बारे में कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, इसके भी कुछ पॉइंट्स आते हैं कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर बहुत ही मतलब छोटा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लगता है इसको बनाने के लिए। मटेरियल क्या लगता है अपने को, सेमीकंडक्टर से तो बनते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के जो ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ इसके आयरन का यूज़ कर सकते हैं या फिर निकिल का, ठीक है, या आप यूज़ कर सकते हैं कोबाल्ट का। तो ये सब के ऑक्साइड्स यूज़ होते हैं, सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट। तो ये जनरली जो इनका जो शेप होता है, फॉर्म होता है, इनका फॉर्म कैसा होता है, इनका जो रूप होता है, फॉर्म होता है, वो होता है आपका बैट्स की तरह होता है, या फिर डिस्क की तरह होगा, डिस्क के फॉर्म में बनाए जाते हैं, या फिर रॉड के फॉर्म में बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बेडिंग कैसी होती है, इस तरह से होता है आपका बेड बोलते हैं इसको, और इसमें ऐसे लीड निकले होते हैं, और ये जो लीड निकले होते हैं ना, ये प्लैटिनम के होते हैं। किसके होते हैं लीड, ये होते हैं आपके प्लैटिनम के, प्लैटिनम लीड्स होते हैं, और ये बेड टाइप है। इसी में डिस्क टाइप होता है, ठीक है। डिस्क टाइप कैसे बनाएंगे, डिस्क टाइप के लिए आपको ये पूरा सर्कुलर डिस्क जैसा लेना पड़ता है, इस तरीके से। तो ये ऐसा बनता है, और इसमें भी 2 टर्मिनल ले लिए जाते हैं, ये एक पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। तो ये आपका डिस्क टाइप है। और रॉड में रॉड के टाइप का होगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते। तो इतनी सी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये प्लेटिनम की क्या है, इसमें लीड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्लेटिनम की लीड ली जाती है। और इस पूरे चीज़ को, है ना, इसको पूरे को एक एनवलप के अंदर रखा जाता है। वो एनवलप होता है ग्लास बल्ब का, या फिर किसी और ट्रांसपेरेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसको जनरली हम ग्लास बल्ब ही यूज़ करते हैं। ग्लास बल्ब के अंदर रखा जाता है, एक मतलब एनवलप जैसा होगा बाहर में ग्लास बल्ब का, उसके अंदर रखा जाएगा। तो उसमें ये क्या, मैंने जो भी खींचा ये गलत कर दिया, ये वाला जो पार्ट है ये रखा जाता है, और ये लीड्स बाहर निकली जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और जो ग्राफ हमने देखा उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते थे।
जैसे हमने ये देखा कि इसके अंदर चेंजेस कहाँ से होते हैं, 4000 ओम से लेकर के 3 ओम तक चेंज होता है, और जो टेम्परेचर है -50 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस। अब ये काम कहाँ पे करेगा, इसको कहाँ पे यूज़ करना है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि थर्मिस्टर को हम यूज़ कहाँ करें। ठीक है, तो आपको पता है कि थर्मिस्टर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसा कि हमने अभी देखा था। ठीक है, तो इसको हम ना एक सेफ गार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखो, जब करंट ज़्यादा बढ़ता है किसी सर्किट में तो वहाँ पे हीटिंग बढ़ जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहाँ पे अगर थर्मिस्टर लगा रहेगा तो उस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसको एज ए ना प्रोटेक्टिव डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सर्किट बता रहा हूँ, अभी इतना ज़्यादा तो आपको नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक ट्राई करता हूँ आपको बताने का। जितनों को समझ आए बहुत बढ़िया है, ना है तो भी आप ये वीडियो को दोबारा देखना। देखिए, ये मैंने 2 टर्मिनल पे यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं आपका वोल्टेज सप्लाई लगाऊंगा। तो कोई सर्किट में ले रहा हूँ, उसके लिए 2 टर्मिनल है जहाँ पे मैं वोल्टेज सप्लाई लगाने वाला हूँ। ये कोई लोड है हमारे पास, और उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे थर्मिस्टर। ये ऐसा थर्मिस्टर यहाँ पे लगा दिया हमने, और ये क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो इसको मैं T नाम से बुलाता हूँ क्योंकि ये क्या है, थर्मिस्टर है। उसके बाद मैं क्या लगा दिया हूँ, यहाँ पे हीटर लगा दिया हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हीटर मैंने बना दिया है, तो इसको मैं लिखता हूँ हीटर। तो एक हीटर कनेक्टेड है और ये अपना सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया, और ये थर्मिस्टर है। तो यहाँ पे ये कैसा वर्क करेगा, एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। मतलब अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सर्किट में तो वो सर्किट को क्या कर देगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो वो कैसे करेगा, देखो, जब क्या होता है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, जब इसको हम स्विच ऑन करते हैं, क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उस टाइम पर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ऑन कंडीशन लिख देता हूँ मैं, ऑन कंडीशन। जैसे ही हम ऑन करते हैं, एट ऑन कंडीशन, क्या होगा, थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस RT बोलता हूँ, दिस इज़ द रेजिस्टेंस फॉर थर्मिस्टर, इज़ हाई। क्यों हाई होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, अभी कोल्ड है, क्योंकि जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है। तो जब कोल्ड है इसका टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस क्या है, इसका हाई है, थर्मिस्टर का। लेकिन क्या होगा, जैसे ही करंट बढ़ेगा, जैसे ही क्या होगा, करंट बढ़ेगा, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, है ना, एट सम लेटर टाइम। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट में जब करंट फ्लो होता है ज़्यादा देर तक तो वो हीट अप हो जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, जो टेम्परेचर है, सॉरी, जो रेजिस्टेंस है किसका, थर्मिस्टर का, वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, लो, एक लो वैल्यू अटेन कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ये जैसे ही रेजिस्टेंस लो होता है उसके कारण क्या होगा बताइए, जैसे ही थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप होता है, तो जितना मैक्सिमम करंट है वो कहाँ से फ्लो होने लगता है, आपका हीटर के थ्रू फ्लो होने लगता है। कहाँ से फ्लो होने लगता है, हीटर के थ्रू फ्लो होने लगता है। तो इस तरीके से ये सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है कि जो मैक्सिमम करंट आया सर्किट में, जो मैक्सिमम करंट आया वो टोटली कहाँ चला गया, इस हीटर के थ्रू चला जाता है। तो हीटर क्या है, आपका ज़्यादा वाटेज का है, तो वो क्या कर सकता है, इस लोड में ना जा कर के पूरा हीटर में क्या होता है, कंज्यूम होता है, जो हीट होता है वो। तो एक्सेसिव जो करंट होता है, करंट सर्ज जो बनते हैं यहाँ पे, तो करंट सर्ज से हम सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। करंट सर्ज प्रोटेक्शन इज पॉसिबल यूजिंग थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का यूज़ करके हम करंट सर्ज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग को ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन क्या सर्किट, अगर आपको सर्किट के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो पहले इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था नॉर्मल टाइम पर, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब करंट इसमें रेगुलर फ्लो होने लगा तो ये हीट अप होने लग जाता है। तो ये जब हीट अप होने लगता है तो क्या होता है, यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत लो हो जाता है। तो जो हीटर है उसमें फिर ज़्यादा एक्सेसिव करंट जाने लगता है, और हीटर की रेटिंग भी 1000 वाट से शुरू होती है, तो ये इसको भी विथस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो एक्सेसिव पर ये जो लोड हमारा लगा हुआ है ये सेफ हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक और एप्लीकेशन है इसका, वो हम देख लेते हैं। एक थर्मिस्टर जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रखता है। इसकी वजह से वो एक अलार्म सर्किट में भी यूज़ हो सकता है। जैसे मोटर की वाइंडिंग है या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है या जनरेटर की वाइंडिंग है, तो इसमें ना वो एक अलार्म की तरह वर्क कर सकता है जब टेम्परेचर क्या हो आपका एक्सेसिव हो जाए। जैसे कोई मशीन है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर है या जनरेटर है या मोटर है, तो इसके अंदर जो वाइंडिंग्स हैं, तो वाइंडिंग की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो उसके लिए वो हमको एक अलार्म दे देगा थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर एज ए अलार्म यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, किसमें, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर्स में। तो इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अ थर्मिस्टर विथ अ निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू इशू एन अलार्म। ठीक है, अ thermistor with a negative temperature coefficient can be used to issue मतलब जारी करना, issue an alarm for excessive temperature ऑफ वाइंडिंग्स। किनकी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, मोटर की, या आप जनरेटर की ले लो, या फिर ट्रांसफार्मर की ले लो। किसी भी मशीन के वाइंडिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन वाइंडिंग के जो टेम्परेचर होते हैं अगर वो एक्सेसिव हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए एक अलार्म दिया जा सकता है थर्मिस्टर का यूज़ करके। तो ये एक एप्लीकेशन है। अगर आप सर्किट जानना चाहें तो इस तरीके से आपका यहाँ पे थर्मिस्टर लगा होता है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये एक सर्किट बनी होती है। इसमें एक यहाँ पे क्या होता है, एक कॉइल होता है, एक रिले कॉइल होता है, और यहाँ पे आपकी बैटरी लगी होती है। ठीक है, जिससे ये सर्किट रन होती है। तो ये आपका है रिले कॉइल। ठीक है, और ये आपका थर्मिस्टर है और ये बैटरी है, और इसी के दूसरी तरफ इस तरीके के कनेक्शंस बने होते हैं। ये ज़्यादा बस देख लो एक बार, इस तरीके का कनेक्शन बना होता है जिसमें एक और बैटरी लगी होती है इस तरीके से, और यहाँ पे बजर अलार्म होता है, सिग्नल होता है। बजर समझते हैं, से गाड़ी में जब हॉर्न बजती है तो वो बजर के थ्रू बजती है। इंडिकेटर ऑन करते हैं तो एक बजर लगा होता है जो वो वॉल्यूम जनरेट करता है। तो सिग्नल लैंप, यहाँ पे कोई लाइट भी लगी हो सकती है, इंडिकेटर लाइट, तो उसको हम लिख देते हैं सिग्नल लैंप या बजर। से वॉशिंग मशीन में आवाज़ आती है वो भी बजर के थ्रू आती है। तो ये सब क्या है, आपका एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो कि एक अलार्म जनरेट करने वाला है। ठीक है, इस तरीके की सर्किट होती है। तो जब टेम्परेचर वाइंडिंग की लो होती है तब ये थर्मिस्टर क्या होता है, लो कोल्ड होता है, मतलब ठंडा होता है। तो जब ये ठंडा होता है उस टाइम क्या होता है, इससे थ्रू एक्सेसिव करंट फ्लो नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है। कब, जब ये कोल्ड होता है, कोल्ड स्टेट में होता है। तो उस समय क्या होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से बहुत मिनिमम करंट फ्लो होता है। यहाँ पे करंट क्या फ्लो होता है आपका, बहुत ही मिनिमम करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसकी वजह से कोई अलार्म यहाँ पे जनरेट नहीं होता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है RT वो बहुत ही कम हो जाता है।
तो अगर सर्किट का ये रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा RT, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I, वो अब किस में बदल जाएगा, I मैक्स में बदल जाता है, मैक्सिमम करंट में वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो करंट इस रिले कॉइल के थ्रू फ्लो होता है, और रिले कॉइल के थ्रू फ्लो होने के कारण इन दोनों को अट्रैक्ट कर लेता है। इसके जो एंड है, अलार्म सिग्नल के जो मतलब सिरे हैं, उसको क्या कर लेगा, सर्किट के सिरों को अट्रैक्ट करता है और आपस में कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक क्लोज्ड पाथ बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बैटरी तो लगी हुई है पहले से, तो ये बैटरी और ये अलार्म जो है आपका बज़र है, और ये सर्किट के थ्रू पूरा कंप्लीट हो जाता है ऐसा, और करंट यहाँ पे फ्लो होने लगता है। जैसे ही यहाँ करंट फ्लो होना शुरू होता है तो ये बज़र क्या दे देता है, अलार्म दे देता है, मतलब साउंड आने लगता है, या यहाँ पे अगर लैंप लगा है तो वो भी जलने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है हमारा, इसका एक एप्लीकेशन है थर्मिस्टर का। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वाई कमेंट लिख दीजिए, और अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वेरिस्टर, वो मैं बताऊंगा, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म। चलिए देखते हैं आपके कमेंट्स, क्या क्या कमेंट्स आए हैं, सबको समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 9 कमेंट्स हैं और सबको समझ में आया है, वेरी गुड। ओके, सो अपना जो लास्ट यहाँ पे टॉपिक है दैट इज वेरिस्टर, ठीक है। जैसा कि नॉन लीनियर रजिस्टर के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो एक थर्मिस्टर नॉन लीनियर रजिस्टर था जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा और कंस्ट्रक्शन देखा, फिर एप्लीकेशन को भी देखा। अब हम देखने वाले हैं वेरिस्टर के बारे में, जो एक दूसरा नॉन लीनियर रजिस्टर है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं इसको बताऊंगा वेरिस्टर को। चलिए इसका हम पहले करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमको एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये पहले मैंने वाई एक्सिस ले ली और इसके बाद मैंने एक्स एक्सिस ले लिया। तो वाई एक्सिस में ये क्या है, आपका करंट को बता रहा है, वाई एक्सिस क्या बता रहा है, आपका करंट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट दे रहा है एम्पियर में, और जो एक्स एक्सिस है वो हमारा वोल्टेज को बता रहा है, जिसका यूनिट है वोल्ट। क्लियर है। यहाँ पे ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0, और यहीं पे करंट की जो वैल्यू है वो है 0.001 एम्पियर। फिर जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ता जाएगा, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो यूनिट है वो मैंने गलती से वोल्ट लिख दिया, ये आपका है किलो वोल्ट में, थोड़ा हैवी यूनिट है। किसमें है, आपका किलो वोल्ट में है वैल्यूज़। तो ये 2000 वोल्ट, 4000, 6000, 8000, 10000 तक जाता है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है उनकी वैल्यूज़ है 0.01, 0.1, देन 1, आफ्टर दैट 10, आफ्टर दैट 100। तो इस तरीके से एम्पियर में वैल्यूज़ हैं। तो जैसे ही आप वोल्टेज को यहाँ से इंक्रीज़ करना शुरू करते हो, ठीक है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ यहाँ से हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से करंट भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, देखो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम जैसे 10 kV 10,000 वोल्ट पर करंट क्या आ रहा है आपका 10 एम्पियर। अब ये जो ग्राफ है आपका, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो ये वेरिस्टर का ग्राफ है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए वेरिस्टर क्या है, आपका एक नॉन लीनियर रजिस्टर है, ठीक है। तो ये वेरिस्टर का ग्राफ है, VI ग्राफ बोलते हैं, वोल्टेज करंट ग्राफ। और चूंकि इसमें जो इसका ग्राफ आ रहा है, कर्व आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब वोल्टेज और करंट लीनियरली चेंज नहीं हो रहे हैं। तो वोल्टेज और करंट के बीच कैसा रिलेशन बता रहा है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है, इसीलिए वेरिस्टर क्या है, एक नॉन लीनियर रजिस्टर है। इसका जो वोल्टेज है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे वोल्टेज को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो होगा V/I। अब यहाँ पे देखिए आप जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को
इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इस साइड में क्या कर रहे हैं, आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो वोल्टेज आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, आपका जो करंट है बहुत स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे 0.001, यहाँ पे 0.01, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 1, तो अप्रॉक्स 1 पे भी क्या है, आपका वोल्टेज लगभग 4 kV के आसपास है। तो देखो जितने हिसाब से करंट बढ़ रहा है, सॉरी वोल्टेज बढ़ रहा है, उससे बहुत कम क्या हो रहा है, आपका करंट कम हो रहा है। मतलब जैसे वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से करंट का चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब आप R की वैल्यू V/I से नहीं दे सकते। तो ये जो हमारा पहले हमने पढ़ा था लीनियर रजिस्टर में कि R इज इक्वल टू होता है V/I, दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है ये उसके करस्पॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा था। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है R इज इक्वल टू V/I, दैट इज़ नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर रजिस्टर्स। तो ये वाला रिलेशनशिप हमको सिर्फ लीनियर रजिस्टर्स में यूज़ करना है। तो ये क्या है, हमारे नॉन लीनियर रजिस्टर, तो इसमें यहाँ पे एप्लीकेबल ये नहीं होगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर से। किससे बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर से बना होता है। तो वैरिस्टर किससे बना है, सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर से बना है। और इसका शेप कैसा होता है, इसका फॉर्म होता है एक डिस्क टाइप का, डिस्क फॉर्म में होता है। ठीक है, डिस्क टाइप। तो ये कंस्ट्रक्शन है और इसका ये डिटेल हमने आपको बता दिया है। और ये क्या है, पैरेलल में लगाए जाते हैं जहाँ पर भी ना ट्रांजिएंट वोल्टेज होते हैं, हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज। ट्रांजिएंट मतलब अचानक आने वाले, कम टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली जो वैल्यूज़ होती है, हाई ट्रांजिएंट वोल्टेजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन, इसका कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मटेरियल यूज़ होता है, सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर। और वैरिस्टर नॉन लीनियर रजिस्टर क्यों होता है। तो ये ऑल जितना मुझे बताना था मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे बता दीजिए। और अगर कंप्लीट आपको समझ आ गया, करंट स्लोली इंक्रीज क्यों होता है, वो उसका मटेरियल है दीदी। क्या है, मटेरियल का जो नेचर होता है वो तो एक्सपेरिमेंट है। जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ा करके जब देखा वैरिस्टर में, तभी हमको पता चला कि करंट इसमें स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो उसका नेचर है, तो उसको आप रीजनिंग मत करो, है ना। सिर्फ आप ये जान लो कि वैरिस्टर में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अभी तक के टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया तो वाई कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को क्लियर हो गया। और अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी देख पाएंगे। थैंक यू। अब जो कल की क्लास होगी उसमें मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, कल की क्लास से हम पढ़ेंगे डीसी सर्किट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, डीसी सर्किट के बारे में। थोड़ा सा मैं डीप में दे देता हूँ आपको कि नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। बहुत आसान सा टॉपिक आ जाएगा, डीसी सर्किट, जो कि कई एग्ज़ाम्स में और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। तो डीसी सर्किट में हम स्टार्ट करेंगे, डीसी सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। फिर आपको सीरीज़ सर्किट के बारे में बताएंगे, सीरीज़ सर्किट क्या होती है। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है बिटवीन नेटवर्क एंड सर्किट, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। पूरे बेसिक में देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे वैल्यूज़ आती है और चेंज होता है सब कुछ। पैरेलल सर्किट देखेंगे इसका, पैरेलल सर्किट, और दोनों का मिक्स करके देखेंगे कि अगर सीरीज़ और पैरेलल दोनों को साथ में यूज़ किए तो क्या होगा, सीरीज़ पैरेलल सर्किट। तो ये जो क्लास होगी हमारी मंडे को होगी। ये क्लास कब होगी, मंडे को होगी। और मंडे को आप ये क्लास अटेंड कर पाएंगे मॉर्निंग में 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, और संडे को मतलब कल संडे को आपको क्या होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। इसकी भी टाइमिंग डिसाइडेड है, इसको किसी भी टाइम आप नहीं दे सकते। संडे को आप टेस्ट होगा
1 बजे रख रहे हैं टेस्ट 1 PM पर। ये टाइम अगर आपको ठीक ना लगे तो आप चेंज भी करवा सकते हैं। 1 PM टू 1:20 20 मिनट का ये टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 20 क्वेश्चंस, और सभी MCQ टाइप होंगे। और अभी तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से वो पूरे इसमें इंक्लूड होंगे। प्लस अभी 12 सितंबर को आज आपका 6 बजे से शाम से एक वेबिनार है जिसको आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स मैंने लिए हुए हैं। तो ये ओवरऑल नॉलेज था जो मैं देना चाह रहा था। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल। टेस्ट क्लास संडे को सिर्फ टेस्ट होगा मेन का, है ना। कल टेस्ट है, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी है आप लोगों की, लेकिन टेस्ट देना है आपको, रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि देखो हम पढ़ते रहते हैं तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम रिवाइज ना करें, अपने आप को चेक ना करें तो प्रॉब्लम होगी। तो MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा और जितना टॉपिक हमने पढ़ा है सिर्फ उसी से रिलेटेड होगा। तो आप अपने टॉपिक को थोड़ा अच्छा कर लीजिए, है ना। टेस्ट होने वाला है, जो भी टॉप करेगा उसके लिए कुछ सोचेंगे हम लोग, ठीक है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव मार्क्स होगा अगर आप सही आंसर देते हैं, ठीक है। सो आप अपना जो रिव्यू है ग्रुप में दे सकते हैं, अपना फीडबैक। इमामी का भी रहेगा क्या? नहीं, अभी इमामी का नहीं बता सकता मैं इसका बता रहा हूँ आपको, इमामी का नहीं है अभी। थैंक यू नारायण। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में अपना फीडबैक दे सकते हैं, उसके लिए थैंक यू। और आपको PDF और वीडियो की रिकॉर्डिंग दोनों ही मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।